Hello students. So today we are going to start our next chapter, chapter number 18, statistics. What is statistics? First of all, we have to learn what is statistics. Statistics is a study of collection. Statistics is a study. Study of what? Study of collection, analysis and presentation of data. What is statistics? It is study of collection, analysis and then presentation of data. For example, if I want to count or if I want to calculate or make a list of the marks of the students in subject mathematics for a particular class, then first of all I have to collect the data, then analyze that data, process of analysis, and then I am going to present that data in the form of ascending to descending order or descending to ascending order, that highest marks are this and the lowest marks is this. This is statistics, not data. Statistics is a collection, analysis and presentation of data. But what is data? Data is a set of collected numerical facts. For example, it is a mark sheet, it may be a goods price list, anything else. When we collect numerical facts, when we just collect the data, then that collection is known as data. It may be raw data, it may be array data. And when we do some actions on this data, when we arrange it, then it would be an information. What is data? Data is a collection of collected numerical facts. Come to the next term. This is variable. Variable, as the name suggests, variables are those whose value varies or changes. Same, a quantity which can vary from one individual to another. What is variable? Variable is a quantity which can vary. Which can vary, as the name suggests, variable, which can vary from one individual to another individual. Now, variables are of further two types. In your book it is continuous variable and discrete variable. But these continuous and discrete variables are of quantitative variables. Continuous variables. What are continuous variables? A variable which can take any numerical value within a certain range. ठीक है, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू चूज की है विद इन अ सर्टेन रेंज. फॉर एग्जांपल, वेजेस ऑफ पर्सन, heights of persons. This is the continuous variable. What is discrete variable? Discrete or discontinuous variable, which is incapable of taking all possible numerical values. जो कि सारी possible numerical values को नहीं चूज करेगा. For example, number of children in a family or number of entries in a general hospital, etc. है क्या? Continuous variables and this discrete variable. See बच्चे, continuous variable को हम लोग measure कर सकते हैं. The quantities under this continuous variables are to be measured and the quantities under this discrete variables can be counted. ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे हम measure कर सकते हैं. measure कर सकते हैं wages of a person, हम measure कर सकते हैं height of a person. किसी की हाइट 5.5 है, किसी की 6.2, किसी की 5.9, 5.10, लाइक दिस. नाउ व्हाट इज डिस्क्रीट? हम काउंट कर सकते हैं. काउंटेबल वेरिएबल. ठीक, काउंटेबल कैसे? हाउ मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर देयर इन अ फैमिली? हम कह सकते हैं ओनली वन चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन. ठीक, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अंडर दिस कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, बच्चे, दिस इंक्लूड्स डेसिमल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेट की बात करें कि बच्चों के एवरेज वेट के बारे में बताओ, बच्चे हैं फॉर द क्लासेस 1 to 5 एवरेज वेट, और हमने रेंज दे दी उनको कि रेंज शुड बी 20 kg to 30 kg फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 1 to 5. 35 kg मैक्सिमम कर लो. ठीक है, 20 to 35 kg. अब उसमें डेसिमल्स इंक्लूड हो सकते हैं, फ्रैक्शंस इंक्लूड हो सकती हैं. किसी का वेट हो सकता है 20.5, किसी का वेट हो सकता है 25.7, लाइक दिस.
बट इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल हम कभी नहीं कह सकते कि किसी के घर में 1.5 बच्चे, किस घर के लोग कितने हैं, अगर हम कहें नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली, लेट अस सपोज इन माय फैमिली 4 मेंबर्स आर देयर, ठीक, in 4 members we 3 are adult one and 1 is child, then we can't say that we are having 3.5 members in a family. This is wrong. We can't say like this. So this is a perfect number, perfect countable word or perfect countable number. This is the basic difference between your continuous variables and this discrete variable. So come to the next one. We have studied that what is data, we have studied what are the variables, continuous variables, discrete variables. Now come to the raw data, arrayed data. Consider the marks of 10 students in a test of 20 marks. Let us suppose I am having marks of 10 students in a test of 20 marks. Okay, in a test of 20 marks, ये मेरे पास 10 बच्चों के नंबर हैं, ठीक। अगर मैं इसी तरह से कोई पूछता है कि आपकी क्लास में टेस्ट हुआ, 10 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ऑन दैट डे, मार्क्स दीजिए, मैं इसी तरह से डाटा दे दूं, देन दिस इज नोन एज रॉ डाटा. दीज आर द मार्क्स, मैम 20, 10, 12, 13, 5, 9, 0, 19, 11, 16, these are the marks. This is the raw data. किसी तरह से अरेंज नहीं किया गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास में बच्चा है रोहन के मार्क्स है 20, कोई क्लास में बच्चा है मानिक, उसके मार्क्स हैं 10, कोई हकीरत है उसके हैं 12, ठीक। अगर हम अरेंज करेंगे, मानिक गॉट 10, हकीरत गॉट 12 एंड दैट रोहन गॉट 20, देन दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन, परफेक्ट डाटा. देन व्हाट इज raw data? Data is in the form like this, ठीक, marks of 10 students in a test of 20 marks. And when we arranged this data in ascending or descending order, ठीक, ascending, all of you are familiar with this term ascending and this term descending. When we arrange in this form, then it is known as arrayed data. For example, if I want to arrange these marks in ascending form, then 0, then next comes 5, 9, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the marks of 10 students, and I am going to arrange these marks in ascending order: 0, 5, 9, then 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Then 16, 19 and 20. These are the marks of that 10 students in ascending order. And when we want to write in descending order, then just reverse the order. This is the arrayed data. Next, come to the tabulation of data. What is tabulation of data? When we represent a data in the form of table, that is known as tabulation of data. See, when we represent a data in the form of table, please mind this thing, in the form of table, then this process is known as tabulation of data. For example, I am having two families, family A and family B. Now, I am going to find out number of males in a family A and B, number of females in a family A and B. Let us suppose in family A, 3 male members are there and 2 female members are there. So 3 plus 2, how many total members are there? 5. In a family B, let us assume that 2 male members are there and 4 female members are there. So in total, how many members are there? 6. Now, if we sum up this number of males in two families, it is equals to 5. And if we sum up the number of females in these two families, this is equals to 6. 5 plus 6 gives you 11. And if I sum up the number of total members in a family, family A, there are total 5 members, family B, there are total 6 members.
So in total there are 11 members, and if we write the data in these tables, then this is the tabulation of that given data. Next, come to the frequency. What is frequency? A number which tells how many times does a particular data appears in a given set. Frequency is the number which tells how many times does a particular data appear. For example, let us suppose I am having a set. मेरे पास बच्चे एक सेट है जिसमें नंबर्स हैं 1 2 0 3 2 1 2 1 2 5 7 2, ठीक, कुछ इस तरह से 5 7. This is a set, and if I want to find out the frequency of 2 in this set of data, I want to find out the frequency of 2. That means I have to count how many times does 2 appear in this set. 1 2 3 4. So number 2 appears 4 times, or we can say frequency of 2 is 4. And if I want to find out the frequency of 1 2 3. So 1 appears 3 times here. We can say frequency of 1 is equals to 3. So what is tabulation of data? Tabulation of data is representation of data in the form of table. And what is frequency? Frequency tells how many times a particular number appears in the given set. This is the frequency of the data. Next, come to the frequency distribution. As the name suggests, frequency distribute हो रही है, frequency distribution. The tabular arrangement of data showing their corresponding frequency. For example, अगर मैं कोई डाटा है मेरे पास रॉ डाटा, ठीक है, इधर मैं लिख रही हूँ जो वैल्यूज उन्होंने दी हैं, इधर टैली मार्क्स हम प्लॉट करते हैं, और इधर है फ्रीक्वेंसी, इस तरह से, ठीक है. जो टेबुलर अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ टेबल अगर हम लिखते हैं, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा शोइंग देयर कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? This is frequency distribution table. The table showing the data with their corresponding frequencies is called frequency distribution table. ठीक, under this frequency distribution table we are having two categories. One is ungrouped data and the other one is grouped data. What is ungrouped data? Let us suppose beta I am having marks of 10 students, ठीक, in 20 marks test जो हमने पहले लिया. ये आ रहे हैं हमारे पास मार्क्स, ठीक है. इधर हम लेके चल रहे हैं टेली मार्क्स, इधर है मेरे पास फ्रीक्वेंसी, इधर है फ्रीक्वेंसी. अब लेट अस सपोज मैंने इधर मार्क्स लिखे ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है. 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे 2 1 2 3 5 7 9 8 10, इधर 4, ठीक है. अब मार्क्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें भी आपने लिखना है वो लिख दो. 1 2 3 5 7 8 9 10. ये हुआ मार्क्स का टेबल. अब इन मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे टैली मार्क्स प्लॉट करनी है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब 1, कितने बच्चों ने 1 मार्क लिया है? ओनली 1. 2, कितने बच्चों ने 2 मार्क्स लिए हैं? 2. एक टैली मार्क फॉर द 1 मार्क, सेकेंड टैली मार्क है दूसरे नंबर के लिए. कितने बच्चों ने 3 मार्क्स लिए हैं? 1. 5 1 7 1 8 1 9 1 10 भी 1. अब जितने टैली मार्क्स नजर आ रहे हैं, पर्टिकुलर डाटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने टैली मार्क्स नजर आ रहे हैं उनको फ्रीक्वेंसी टेबल में लिख दो. कितने टैली मार्क्स हैं? 1. कितने हैं? 2. 1 अगेन 1, फिर 1 1 1 1. अब काउंट करके देखो कितनी फ्रीक्वेंसी बनी. 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9
10, वन मोर इज देयर। ठीक, तो टोटल मेरे पास बन गए 10। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लेके चल रहे थे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने काउंट किए, उतनी ही फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे बननी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिफरेंस नजर आ रहा है, दैट मीन्स कोई चीज छूट गई। ठीक है, जितनी टेलीमार्क्स है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमने लिख देनी है। जैसे यहाँ पे भी मिस होगी थी 10 की। ठीक है, आपने कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज उसके साथ लिखनी है और फिर यहाँ पे उसका सम कर देना है। दिस इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसी को अगर मैं ज्यादा डाटा के लिए लेके चलूं, लेट अस सपोज मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हम लोग डील कर रहे हैं, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दिए। ठीक है, अब उन 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, वो 10 में से ही आ रहे हैं और मार्क्स हैं उनके 3, 5, 7, 10, 9, 8, 3 और एक लिया हमने 4। लास्ट टाइम पे भी 4 मिस हो गया। ठीक है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी देखो जो मिस हुई वो हमें यहां से पता चल जाएगी। अब हमारे पास चेंजेस हो गए, अब हमारे टेलीमार्क्स, हमारे मार्क्स में चेंजेस हो गए। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे चेंज कर जाएंगे। अब कितने स्टूडेंट्स ने 1 मार्क्स लिए हैं वो हमारे पास क्लियर हो गया कि 1 मार्क लिए हैं, सिर्फ 1 स्टूडेंट है, वो हमने उसके लिए टेलीमार्क दे दिया। 2 मार्क्स कितने हैं? 1 and 2, 2 टेलीमार्क्स आर देयर। ठीक, अब 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं? 3 मार्क्स लिए हैं 1, दिस इज 1, 2, 3, दैट मीन्स 1, 2, 3। ठीक है, तो अब 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? 3। ठीक बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टेलीमार्क है? नेक्स्ट है हमारे पास 4 के लिए। कितने मार्क्स हमें दिए हैं? नेक्स्ट 4। इसके बाद क्या दिया है? 5, देन है 7, 8, 9, 10। इनके लिए हमें फाइंड आउट करनी है। 3 तक हो गया हमारा। कम टू द 4। 4 कितना है? 1, 2, मतलब 2 टेलीमार्क्स 4 मार्क्स के लिए। फिर 5 कितनी बार नजर आ रहा है? 1, 2, 5 के लिए भी 2 टेलीमार्क्स। 7, 1, 2, again 2 telemarks for 7. Now how many times 8 is there? 1, 2, 3. So 8 के corresponding 1, 2, 3. ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8. 8 तक के हमारे मार्क्स कंफर्म। अब आ जाओ नेक्स्ट। 9 मार्क्स कितने बच्चों की हैं? 1, 2. Only 2 students are there for the 9 marks. अब 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 1, 2, 3. That means 1, 2, 3. ये टेलीमार्क्स बन गए हमारे पास। अब इन टेलीमार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चे फ्रीक्वेंसीज हमने बतानी है। इन टेलीमार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो हमने बतानी है। ठीक है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गई 3, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, 5 की 2, 7, 2, 8, 3। 8 की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बनी है? 3। 9 की फ्रीक्वेंसी 2 और 10 की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 3। इसका सम फाइंड आउट करो। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 2 8, 10, 12, 12 3 15, 15 and 5 20। यानी कि मेरी डिवीजन बिल्कुल एक्यूरेट है। अब एक चीज जो अनग्रुप्ड डाटा में और आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन में लेट अस सपोज 4 मार्क्स किसी बच्चे के नहीं आते, 4 मार्क्स नहीं है, इसकी बजाय 3 मार्क्स ही आ रहे हैं बट 5 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो वहां पे टेलीमार्क कैसे होगा? 1, 2, 3, 4 और 5th जो है वो अक्रॉस बनेगा। जो 5th है वो अक्रॉस बनेगा। इसके बाद अगर 6 स्टूडेंट्स हैं तो 6th यहां से स्टार्ट होगा, 7, 8, 9, फिर 10 पे आ गया, फिर वो अक्रॉस बनेगा। ठीक है, 5 का एक सेट बनाना है टेलीमार्क्स का, ये चीज ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, दिस इज फॉर योर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, टेबुलर अरेंजमेंट है जो कि डाटा का जो शो करता है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को, और उस टेबल को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और उसी टेबल में two categories are there, one is ungrouped and another one is grouped frequency distribution। ये था मेरे पास अनग्रुप्ड की सिंगल सिंगल इंडिविजुअल मार्क्स के साथ हमने डील किया। नाउ नेक्स्ट कम टू द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज आवर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। Let us consider the marks of 20 students. See, I am having marks of 20 students, 29, 23, 30, 40, so on up to 25, 22. ठीक, and we have to make the grouped frequency distribution taking the class intervals 1 to 10, 11 to 20 and so on, 21 to 30, 31 to 40, like this. So I am going to make the table which contains 3 columns. One is marks, telemarks and then frequency. Under the marks, as instructed in the question, we have to take 1 to 10 class interval, 11 to 20, 21 to 30 and 31 to 40. ठीक, पहले बेटा हमने किया था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमने सिंगल सिंगल मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग टेलीमार्क्स फाइंड आउट किए। दिस इज ग्रुप्ड। अब हमने ग्रुप कर दिया कि मार्क्स बताओ 1 से लेकर 10 तक कितने आ रहे हैं, कितने बच्चों के आए, 11 से 20 कितने बच्चों के आए, 21 से 30 कितने बच्चों के हैं, 31 टू 40 कितने बच्चों के मार्क्स हैं। ये अब एक ग्रुप में हम बता रहे हैं कि 1 टू 10 कितनों ने लिए, 11 टू 20 कितने बच्चे हैं, वो चीज। नाउ अब इस रॉ डाटा में से जो इंफॉर्मेशन रॉ डाटा हमें दिया हुआ है, इसमें से हमें इन मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग टेली मार्क्स प्लॉट करने हैं इन फ्रंट ऑफ दिस इंटरवल 1 टू 10। अब इस 1 टू 10 में वो सारी वैल्यूज आएंगी, कौन सी वैल्यूज, जो कि इस तरह से लाई करती है। ठीक है, 1 टू 10 इंटरवल है। अगर मैं कहूं मेरी कोई वैल्यू है x जो कि बिलोंग कर रही है 1 टू 10 को, ठीक है, तो उसमें कौन सी वैल्यूज आएंगी, 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। इस तरह से उसमें वैल्यूज नजर आएंगी, मतलब 1 भी इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, 10 भी इंक्लूडेड है इस इंटरवल में। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वैल्यू इज 29। 29 कम्स अंडर 21 to 30, 23, 21 to 30, 30 here also. Now 40 comes under 31 to 40. 4 telemarks are there. The 4 values हमने कट कर दी। Next one is 11. 11 to 20, 1 to 10, 15, 11 to 20, 11, 1, 15 counted. Next is 35. 35 किधर आएगा 31 से 40 में। The next one is 40. 35 हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट वन है 40, 40 भी इधर ही आएगा काउंटेबल। देन 3 किधर आ रहा है 1 to 10। नेक्स्ट कम टू 12 आ गया 11 to 20, 18 अगेन 11 to 20। अब देखो 11 to 20 में 4 हमारे पास टेलीमार्क्स हो चुके हैं। अगर कोई और आता है तो हम एक 5th वन जो है वो अक्रॉस बनाएंगे। 30, 21 to 30 यहाँ पे भी 4 काउंटेबल हो गए। देन 24, अब 24 5th वन इस तरह से नहीं शो करना, दिस इज पूरे 5 टेलीमार्क्स का एक सेट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इज 25, 29, देन 31, 32 अक्रॉस आ गया हमारे पास, 32 कैंसिल, 25 1 है 22। सो ये आए टोटल हमारे पास टेलीमार्क्स। अब इन टेलीमार्क्स वहां हमने अनग्रुप्ड भी किया था, मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है वो फाइंड आउट की थी। अब हम ग्रुप्ड में इस ग्रुप के टेलीमार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। कितनी है 1 to 10 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2। 11 to 20 की कितनी है 1 2 3 4 टेलीमार्क्स आर देयर, सो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 4। 21 to 30 5 and 4 9 and 31 to 40 5 telemarks are there,
5। अब एडर करो इन सारी फ्रीक्वेंसीज को, इसका टोटल कितना होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने दिए थे। उन्होंने दिए थे मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अगर फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास 20 है, दैट मीन्स ये हमारे बिल्कुल एक्यूरेट है। नाउ 9 + 5 14 + 4 18 + 2 20. So this is the correct distribution, and this distribution is known as grouped frequency distribution. Next, come to the types of frequency distribution. There are two types. The one is inclusive frequency distribution, the another one is exclusive frequency distribution. These are the two types. See madam, these are the class intervals. ये हमें पता है, these are the class intervals 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. ठीक, अब अगर मेरा एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, सबसे पहले लिमिट क्या है, ये है हमारे पास क्लास लिमिट्स। एक क्लास इंटरवल की जो दोनों वैल्यूज है वो है क्लास लिमिट्स। 20 हो जाएगा लोअर लिमिट, 30 हो जाएगा अपर लिमिट। ठीक, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। नाउ इन द क्लास इंटरवल 0 to 10, 0 is the lower limit, 10 is the upper limit. Next, in the class interval 10 to 20, 10 is the lower limit, 20 is the upper limit. अब अगर अपर लिमिट पहले क्लास इंटरवल की, लोअर लिमिट दूसरे क्लास इंटरवल की के सेम है, अगर ये दो वैल्यूज सेम है, सी यहां पर भी हमारे पास ये वैल्यूज सेम है 20 20। फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल वो सेम है लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल, देन इस केस को हम लोग कंसिडर करते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। एंड फॉर द केस ऑफ एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है। सी 10 is not equals to 11, 20 is not equals to 21। ये है हमारे पास एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, जहां पे अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इक्वल नहीं आ रही लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल। अब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स के साथ डील करने में, ठीक है, अगर तो इंक्लूसिव दिया हम डायरेक्टली डील कर लेंगे, पहली मार्क्स फाइंड आउट किए, फ्रीक्वेंसी की फाइंड आउट, आंसर आ गया। लेकिन अगर एक्सक्लूसिव इंटरवल्स दिए हैं तो सबसे पहले इन एक्सक्लूसिव इंटरवल को कन्वर्ट करना है इंक्लूसिव इंटरवल्स में। इंक्लूसिव इंटरवल्स में इनको कन्वर्ट करना है। अब वो कन्वर्जन कैसे होगी, वो कन्वर्जन होगी विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर। विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम एडजस्टमेंट फैक्टर? ये एडजस्टमेंट फैक्टर है लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल, जो लोअर लिमिट है मेरे पास सेकेंड क्लास इंटरवल की, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं लोअर लिमिट जो है सेकेंड इंटरवल की 11, उसमें से माइनस कर दूं 10 अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटरवल, तो क्या बना 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक, अब ये तो हुआ एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर की हेल्प से कैसे एक्सक्लूसिव इंटरवल्स को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे? जितनी भी लोअर लिमिट्स दी हैं उसमें से एडजस्टमेंट फैक्टर को माइनस करना है। लोअर लिमिट माइनस एडजस्टमेंट फैक्टर, ये बन जाएगी नई वाली लोअर लिमिट। ठीक है, और अपर लिमिट कैसे बनेगी आपके पास? अपर लिमिट प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में कन्वर्ट करते हुए जब हम इंक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लोअर लिमिट्स बनेगी, जो ये लोअर लिमिट्स है इसमें से एडजस्टमेंट फैक्टर माइनस कर दो, जो अपर लिमिट्स नजर आ रही है उसमें एडजस्टमेंट फैक्टर को प्लस कर दो। जैसे 1 माइनस 0.5 0.5, 10 प्लस 0.5 10.5। सिमिलरली अब अगर 11 और 20 को देखें तो 11 माइनस 0.5 कितना बन जाएगा? 10.5। 10.5 से कहां तक जा रहे हैं? 20 प्लस 0.5 20.5। अब देखो अपर लिमिट और ये वाली लोअर लिमिट दोनों सेम है, इंक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अगर कहा नहीं गया क्वेश्चन में तो हमेशा एक्सक्लूसिव को सबसे पहले इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर्स। और एडजस्टमेंट फैक्टर्स के बाद ये जो लिमिट्स बनती हैं, दीज आर द एक्चुअल क्लास लिमिट्स। हमने क्लास लिमिट्स की, अब डिफरेंस क्या है क्लास लिमिट्स और एक्चुअल क्लास लिमिट्स में? दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्लास लिमिट्स, जिसमें उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर हमने जो चेंजेस करने थे अपने एक्सक्लूसिव में, उसको चेंजेस करके इंक्लूसिव में शिफ्ट किया, वो है हमारे पास एक्चुअल क्लास लिमिट्स। ठीक, नेक्स्ट कम टू द क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज क्या है? जो हमारे पास एक्चुअल क्लास लिमिट्स हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। ठीक, एक्चुअल क्लास लिमिट्स आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज है, वो है क्लास साइज। ठीक, इंक्लूसिव इंटरवल्स हमें पता लग गए, एक्सक्लूसिव इंटरवल्स हमें पता लग गए। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास साइज। अब क्लास साइज क्या होता है? ठीक है, हमें हमारा इंटरवल पता है। नेक्स्ट इज क्लास साइज। क्या है क्लास साइज? हमें हमारा इंटरवल पता है। लेट अस सपोज मेरे पास अब इंटरवल है 1 to 10 या 10 to 20, कुछ भी हम इंटरवल कोई भी कंसिडर कर लें। ठीक है, तो उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लेके चलूं, मेरे पास इंटरवल है 0.5 से 10.5, ये चल रहा था मेरे पास क्लास इंटरवल। ठीक, ये है मेरे पास क्लास इंटरवल। अब इस क्लास इंटरवल की हेल्प से मुझे फाइंड आउट करना है क्लास साइज। तो क्लास साइज बच्चे कितना हो जाएगा? क्लास साइज होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स 10। दिस इज द क्लास साइज ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर इंटरवल। अगर मेरा इंटरवल है 0 to 10 और इसका क्लास साइज मुझे फाइंड आउट करना है, वो कितना होगा? 10 minus 0 10। इंटरवल है 10 to 20, क्लास साइज क्या होगा? 20 minus 10 10। इंटरवल है मेरे पास 10.5 to 20.5। ठीक, तो इसमें क्लास साइज क्या होगा? इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 10। ये है हमारे पास क्लास साइज, जिसमें हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। हमने किया टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इंक्लूसिव किया, एक्सक्लूसिव किया। हमने किया कि एक्सक्लूसिव में जो हमारी फर्स्ट इंटरवल है उसकी अपर लिमिट इक्वल नहीं होती हमारी लोअर लिमिट के ऑफ द सेकेंड इंटरवल। ठीक है, ये चीज थी हमारे पास एक्सक्लूसिव में। इसको हमने चेंज किया विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर, जो कि हमें फाइंड आउट करना आ गया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, वो एडजस्टमेंट फैक्टर हो गया। ठीक है, क्लास साइज हमने फाइंड आउट किया, एक पर्टिकुलर इंटरवल का डिफरेंस, वो है हमारे पास क्लास साइज। नेक्स्ट कम टू द क्लास मार्क। एक और टर्म हमें नजर आ रही है क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये है हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्लास मार्क। अब इंक्लूसिव इंटरवल के लिए भी, एक्सक्लूसिव इंटरवल के लिए भी, अगर इंटरवल चल रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इधर एक्सक्लूसिव को जब हमने कन्वर्ट किया तो बना था 0.5 to 10.5, ठीक, 10.5 to 20.5, 20.5 to 30.5 एंड सो ऑन। ये सारे इंटरवल्स थे मेरे पास। मुझे फाइंड आउट करना है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होगा मेरे पास? 10 plus 0 divided by 2। फर्स्ट इंटरवल का क्लास मार्क है 10 plus 0 divided by 2, that means 5। सेकेंड इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा? 10 plus 20 divided by 2, 30 divided by 2, 15। थर्ड इंटरवल का क्या आ जाएगा? 20 plus 30 divided by 2, 50 divided by 2, 25। अब एक चीज और देखना, जो हमारा क्लास साइज था, क्लास साइज क्या था? डिफरेंस बिटवीन दीज टू लिमिट्स। हमने यही पढ़ा था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज। जो हमारा क्लास साइज था वही क्लास मार्क का डिफरेंस है। अगर मैं दो क्लास मार्क्स कंसीडर करूं, 15 minus 5, 10 क्लास साइज के इक्वल आ रहा है, 25 minus 15 वो भी क्लास साइज के इक्वल आ रहा है। सिमिलर वे मुझे एक्सक्लूसिव का फाइंड आउट करना है, तो 0.5 plus 10.5 जो भी आ गया 11 by 2,
तो ये आ जाएगा मेरे पास 5.5। सिमिलरली मैं सेकंड का इस तरह से फाइंड आउट करूंगी 20.5 और 10.5 को सम अप करके 31 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना बन गया 15.5 एंड सो ऑन। ये है हमारे पास क्लास मार्क। ठीक, एंड द लास्ट टॉपिक वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी तक हमें आता है, अब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को? ठीक है, लेट अस सपोज अब मुझे उन्होंने इंटरवल्स दिए हैं, क्लास इंटरवल्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, फाइंड आउट करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ CF। अब क्लास इंटरवल्स हम लेके चल रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये क्लास इंटरवल्स हमने ली। ठीक है, 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी लेट अस सपोज है 5, 10 to 20 की कितनी ले लेते हैं 6, इधर 2, 4, इधर है 7। ठीक, सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसीज का सम फाइंड आउट करो, अपनी फ्रीक्वेंसीज का सम फाइंड आउट करो। 5 plus 6 11, 11 plus 2 13, 13 plus 4 15, 13 plus 4 17, 5 plus 6 11, 11 plus 2 13, 13 plus 4 17 and 17 plus 7 24। ठीक, टोटल फ्रीक्वेंसी बनी मेरे पास 24। अब हमें फाइंड आउट करनी है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वही वैल्यू रह जाएगी मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 एज इट इज। अब सेकंड वैल्यू कैसे आएगी? या तो सेकंड वैल्यू आप इस तरह से कर दो कि यहां तक पहुंचते पहुंचते जितनी फ्रीक्वेंसीज हो चुकी हैं उनका सम, अगर लगता है कि मुश्किल हो जाएगी नहीं याद हो रहा, तो जो 5 आई उसमें ये एड अप कर दो। 5 plus 6 कितना आ रहा है 11। अब 11 plus 2, 11 में हमने 2 को ऐड कर दिया, कितना बन गया 13, 13 plus 4 17, 17 plus 7, 17 में 7 हमने ऐड किए, बन गया 24। जितना सम फ्रीक्वेंसीज का होगा वही लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, इनका सम किया वो आपके पास लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में कि फर्स्ट एज इट इज और जो फ्रीक्वेंसी का सम है वही लास्ट फ्रीक्वेंसी बनेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में। और यहां तक जितनी फ्रीक्वेंसीज हो चुकी हैं उनका हमने सम फाइंड आउट करना है। जैसे हम सेकंड केस में हैं, सेकंड केस में कितनी फ्रीक्वेंसीज हो चुकी थी 6 plus 5। थर्ड केस में कितनी हो चुकी थी 6 plus 5 plus 2। इधर कितनी हो चुकी थी 6 plus 5 plus 2 plus 4। सिमिलरली यहां का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो ये था हमारे पास मेथड कि हाउ टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। That's it. Now practice the questions by yourself. Thank you.